Hello, students. So today we will discuss this chapter 4, psychological factors influencing physical health. As we discussed, like in the last chapter, in chapter 3, that health or illness, it has like not only the only biological factor, there are several other factors which play their role. For example, biological, social, environmental factors. So, in related to health and illness, we always focus on biopsychosocial model. That's what we discussed in the last chapter. So, this chapter is about the psychological factors, as we have learned that psychological factors do play their role in resulting in good health and illness. So, what are those factors? So, our today's discussion will be around those factors. So these are the objectives that you are going to learn, like several objectives from our today's discussion. So beta, first is illness perception. Perception is, it means understanding. So what's the understanding of somebody about their illness? There are people really out there, and you must be in interaction with those people, with those seniors, with those of your grandparents who do not want to take medicine, and their continuous their discussion and their point is that they are not suffering from anything and they will get better. So basically they do not have the proper understanding or perception or concept about their illness. So, illness perception is learning about the symptoms of illness, its cause, duration, and severity. So, but what does it include? Like, what's the explanation of illness perception? So, for example, if you get this long question, like write a note on illness perception, or even short one. So, how you are going to explain? So, what's the components on the basis of which you are going to draw your answer? So, that's the first is illness identification. You name your illness. So, for example, if get this headache, so it is migraine. Okay? Timeline of illness, it's about मतलब what's your like duration of illness, या वो सारी चीज. फॉर एग्जांपल इफ इट इज अबाउट हेडेक, सो हेडेक जो है वो कब स्टार्ट होता है, व्हेन डज इट एंड, कौन सी चीजें हैं जो उसको एक्सक्यूज मी सो रिलीफ देती हैं. ठीक है. सो बेटे कॉजेज क्या क्या है? क्या ये स्ट्रेस की वजह से है? कोई डाइट में हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे जो हमारे इलनेसेस है ना वो ट्रिगर हो जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बेटे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, somebody whom I know, and they are suffering from ulcerative colitis. So there are a lot of things in diet which actually like aggravate their issue. So like coffee or tea, or sometimes मतलब बाहर की जो चपाती होती है. सो ऑल दी स्टफ उनको उनके डाइट से बेसिकली जो है ना वो उनकी इलनेस जो है ना एग्रावेट हो जाती है. जीन्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं. अगर आपकी फैमिली में वो इलनेस जो है वो लाई करती है, सो वो चीज उससे बढ़ जाती है. सो कॉजेज, या फिर बाय चांस आपको जो है वो इलनेस डायग्नोज हो जाती है. कंट्रोलेबिलिटी और क्योरेबिलिटी, क्या ये ट्रीटेबल है या क्या ये क्यूरेबल है? बेटे कुछ चीजें होती हैं कि उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप मेडिसिन लेते हो, एंड यू नो दैट दैट इलनेस जो है ना गेट्स ट्रीटेड. क्यूरेबल होता है बेटे यू, मतलब उसको आपको थोड़ा इन द लॉन्ग रन जो है वो आपको ट्रीटमेंट जो है वो लेके जाना पड़ता है, और आपको मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ खानी पड़ती है. उससे आपका इलनेस जो है ना वो मैनेज हो जाती है. सो एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बट जब भी कोई बेटे कोई बंदा सफर कर रहा होता है किसी बीमारी से, ऐसे नहीं होता सिर्फ वो बंदा जो है बस उसको फॉर एग्जांपल हेडिक होता है तो बस उसको हेल्थ इशू हो गया स्ट्रेस की वजह से. बेटे उसके और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं. फिजिकली, सोशली वो लोगों के साथ मिलना कम कर देता है, या लोगों का उसकी तरफ इंटरेक्शन चेंज हो जाता है. फिर इकोनॉमिकली बेटे जब ऑफ कोर्स आपको जाना होता है मेडिसिन के लिए, तो इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स का भी बहुत इस चीज से है. अगर somebody हैज गुड इकोनॉमिक स्टेटस, तो उसको अपनी मेडिसिन को मैनेज करने में, कंटिन्यू करने में इजीनेस होगी एज कंपेयर टू जो वो लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. हेल्थ बिलीफ मॉडल, बेटा हमने इसको लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था.
कि बहुत क्यों लोग जो हैं, कुछ लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, सम and there are people who do not want to take care of their health. So why is it so? Why are those people who take care of health, why do they do that? And those who do not take care of their health and they try to dismiss their idea of illness, why do they do that? So its key components is perceived susceptibility, severity, benefits, barriers, cues to action. So you guys should know the detail of this model. Locus of control. This is the important one with related to your midterms. So, but a locus of control is about how much control you have. So, people who get any illness, they get this thought that they are able to manage their illness. They are going to take care of their diet, of their routine, and they will manage their illness in a very well manner. सो बेटे ये उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है. इंटरनल मीन्स के उनका कंट्रोल है अपनी बीमारी पे. लेकिन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, आपने लोगों को देखा होगा, दे कीप ऑन कर्सिंग जो है, दे आर फेट कि दे आर नॉट दे they are not really blessed people, or they are cursed that they get this issue and that issue. सो बेटे वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि आप उसको चीज को अपने कंट्रोल से बियॉन्ड समझो कि ये तो मेरी किस्मत में है, या मेरी मतलब मुझे बाय जो है चांस सी बीमारी हो गई, और इस तरह से. तो ये है. और बेटे जो ये अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इफ इट इज बीइंग एज, तो आपने लोकस ऑफ कंट्रोल को पहले डिस्कस करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू नोट then you are going to write note on both the types of locus of control along with the good number of examples. Doctor patient communication, but if a patient is diagnosed with any disease, it's also the responsibility of doctor to educate about the disease, to the illness. उसको बताए कि उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें उसको हेल्प कर सकती हैं उस चीज से कोप अप करने के लिए. डिजीज इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी एंड ट्रस्ट. तो फिर थोड़ा सा उसको जरा काइंड हार्टेडली, अगर आप थोड़ा सा अपने पेशेंट के साथ उसको आप इंटरेक्ट करते हो, यू ट्राई टू हेल्प देम, यू ट्राई टू कंसोल उनका जो उस टाइम पे उनके जो हाइटेंड इमोशंस होते हैं परेशानी की वजह से, यू ट्राई टू कंसोल देम, या थोड़ा सा उसको आप उनको उनके साथ ज्यादा काइंड होते हो, तो आपका उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आपका जो पेशेंट है आपके ऊपर आपकी बात पे यकीन करता है. फिर डिसीजन मेकिंग का और कम्युनिकेशन स्टाइल का सारा उस पर डिस्कस हुआ है. कंप्लायंस एंड मेडिकेशन एडहेरेंस. बेटे बहुत सारे लोग एडहेयर मीन्स के दे either they take medicines, like it means that they have good medication adherence, and if they do not like comply with what the doctors say and they do not take their medicines regularly, it means they have poor medication adherence, they have poor cooperation with their doctors. पर्सनैलिटी टाइप एंड हेल्थ. बट बहुत सारी पर्सनैलिटी लोगों की ऐसी होती है जिसमें लोग वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं. और आपको और हमने इस पे पिछले सेमेस्टर्स में डिस्कस किया हुआ है पर्सनैलिटी टाइप में कि बिग 5 पर्सनैलिटी जो है ना हमारी ट्रेट्स होती हैं. और सबसे पहले है ओपननेस, कि जो लोग बहुत ओपन होते हैं, और आपने इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि जो ओपननेस इनकी जिनकी पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, दे आर लाइक मोर इनटू एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. तो अगर हम इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो ओपननेस की जो ट्रेट है, दे आर द पीपल who have this tendency to explore more than one treatment. Conscientiousness, बेटे ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये लोग मेडिसिन प्रॉपरली लेते हैं. ये लोग अपनी अपनी सेहत का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखते हैं. एक्सट्रोवर्जन, बेटे एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जिनके जो सोशली एनर्जेटिक होते हैं, बेटे इनके अगर इफ दे गेट एनी इलनेस दे आल्सो गेट लाइक गुड सोशल सपोर्ट. एग्रीएबलनेस, बेटे कितना आप बंदा कितना कोऑपरेटिव है, कितना ट्रस्टवर्दी है, वो चीज. न्यूरोटिसिज्म, थोड़ी एंजाइटी पर्सनैलिटीज के अंदर आ जाती है, इमोशनली अनस्टेबल हो. तो जो ज्यादा स्ट्रेस होता है ना बेटे, उस ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ज्यादा बंदे में जो है वो उसके हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो सारा हम डिस्कशन करते रहे. तो न्यूरोटिसिज्म वाला जो है, समटाइम्स दे आर द पीपल दे टेक मेडिसिन, समटाइम्स दे डोंट. और जैसे कि उनकी अगर आप डेली लाइफ में देखो कि उनका तो स्ट्रेस चलता रहता है, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं ना. तो मेडिसिन से भी ऐसे होता है, कभी उन्होंने मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से ले ली, कभी उन्होंने स्किप कर दी. तो ये वाली चीज इस तरह से उनका वेरी करता रहता है, इतना स्टेबल
उनका नहीं होता. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 4, और इसकी डिटेल यू आर गोइंग टू read from, from any website or through your from your book, so it is completely up to you. So I'm going to stop sharing the screen and I'm going to end the recording.